to continue the nomenclature in the class itself. It will be very difficult to understand the nomenclature without the help of a teacher. So you need the presence of teacher over there. Now, so the functional groups left was ether. I was discussing ether group. So how will you identify that the functional group is ether? R, O, R. That means in the carbon chain, you can find oxygen bonded to two carbon atoms on either side. Oxygen atom bonded to two carbon atoms on either side. That means on either side of oxygen, there will be two alkyl groups. The two alkyl groups may be same or may be different, no matter. But if you will see two alkyl group on either side of oxygen, this represents the ether group, ether. Now, ethers are very helpful in treatment of some ENT problem. That means you are having buds and all in the ear. Then ether is being used to kill the fungus and all. So it is very helpful to kill the fungus. That fungus which generally comes in the ear, inside the ear because of the soap and water and all this. If a soap water solution goes inside the ear, sometimes it happens that the fungus develops over there. So if you put ether, 1 or 2 drops of ether, those fungus will be killed. So its use is in the medicine also. So how will you identify whether the ether group? So just now I have said oxygen bonded to 2 carbon on either side. There will be 2 alkyl group on either side. Now, how to do the nomenclature? Suppose you are having 2 alkyl group and even the simplest ether, the 2 methyl group on either side of the oxygen. Then by doing the nomenclature, what we do, the smaller R we identify. Which of the 2 is smaller R and which of the 2 is the bigger R? The bigger R is excluded and the smaller R is included with the oxygen and it becomes alkoxy. This group is known as alkoxy. And the rest of the longest chain, it becomes alkane. And the name goes alkoxy alkane. The general name is alkoxy alkane. So this compound, the particular compound which you are seeing on the board, it is this group is because methyl group is attached to oxygen. So this group becomes methoxy. And the rest alkyne, it is methane. So this will be methane. So the compound is your methoxy-methane. The compound is methoxy-methane. This is the simplest ether. I'm giving you some more example of ether. Suppose CH3, CH2O, CH3. If this group is there, then you have to select the smaller R on either side. So from right side, you see CH3 group and left side, you will find C2H5 group. So which is the smaller R? This one is the smaller R. So smaller R is included with oxygen and the longer R is taken as. So this is your alkane, it is ethane, and this is your methoxy. So this is, the name goes methoxy ethane. Methoxy ethane. Suppose I increase the chain. And I also include a double bond. So this chain is of 3 carbon. Now if I number it from this side, to the first carbon there is attachment of methoxy group and to carbon number 1 there is also an attachment of double bond. How the name goes? 1 methoxy. Ether, its name always comes in prefix children. It never goes in the suffix. So there is no suffix name for alkoxy group.
It will always be considered in as prefix name. So it is 1-methoxy. What does it mean? The longest chain carbon that we have selected, out of that carbon, at carbon number 1, there is a alkoxy group, and this alkoxy group is methoxy. So methoxy group is attached to carbon number 1 of the chain, and the chain is pro of 3 carbons. So the root name goes pro. So this is prefix name, this is root name. What is the suffix name? The suffix name is not ene, it is ene, double bond. So at carbon number 1, there is ene. So the name is 1-methoxy prop 1-ene. 1-methoxy prop 1-ene. This is the name of the compound. Now, if more than one alkoxy group is present, then how to do the nomenclature? So assign the locating number, and at that particular locating number you will be writing. Suppose this is the longest chain, and at this longest chain there is 1-methoxy group here and 1-methoxy group here, and all the chain I'm just writing. So this is the compound. So you just identify that there is a methoxy group here and there is a methoxy group here. Longest chain is of 4 carbon. So you select the longest chain, which includes the methoxy group, all the methoxy group as much as possible, and then you assign the locant number giving priority to the alkoxy group. And at carbon number 1 and 2, there are 2 methoxy groups. So you will be writing prefix name, root name, and suffix name. So what will be the prefix name? At carbon number 1 and 2, there are 2 methoxy groups, dimethoxy. 1,2-dimethoxy, and the chain is of 4 carbons, so the name goes but, and all the carbon are single bonded. The suffix name will be ane. So it will be 1,2-dimethoxy butane. Okay. Now, अगर यहाँ पे कहीं पे डबल बॉन्ड होगा तो इन भी आप लिख सकते हो. तो this is how we do the nomenclature. एक अल्कोक्सी है, 2 अल्कोक्सी है. Suppose एक मिथॉक्सी और एक इथॉक्सी भी हो. तो अगर मैं ये चेन ले लूं और यहाँ पे एक C2H5 ग्रुप लगा दूं और यहाँ पे एक CH3 ग्रुप लगा दूं, तो अब आप इसका नाम कैसे लिखेंगे? यू आइडेंटिफाई एक अल्कोक्सी यहाँ है, एक अल्कोक्सी यहाँ है, एंड दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन. ये आपका लॉन्गेस्ट चेन है. तो लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का है? 1 2 3 4 कार्बन का है. 1 पे इथॉक्सी है और 3 पे मिथॉक्सी है, and the root is but and ane is suffix. So it is 1-ethoxy, 3-methoxy, 1-ethoxy, 3-methoxy butane. So this is how we do the nomenclature of ether. तो अब ये हमारे लगभग जितने भी nomenclature जो कॉमन फंक्शनल ग्रुप मैंने डिस्कस कर दिया है कि ये आपके कॉमन हैं: अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलेट, डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलेट, नाइट्राइल, ester, amides, anhydrides, then acyl halide, then your acyl halide, और क्या बताया था? amines. amines के बाद हेलो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, उसके बाद नाइट्रो बताया था, उसके बाद मैंने ईथर बताया. तो लगभग जो कॉमन फंक्शनल ग्रुप है दैट वी हैव डिस्कस्ड. अब ये सारे मैंने जो आपको बताया ये ओपन चेन के मैंने एग्जांपल्स दिए. नाउ वी आर मूविंग टू द साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है, नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक ग्रुप. तो साइक्लिक ग्रुप में आप देखेंगे कि देयर विल बी अ चेन, क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स. तो मिनिमम कार्बन जो कि क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स में आते हैं दैट इज ऑफ 3. तो आप देखोगे कि 3 से कम कार्बन का साइक्लिक चेन हो ही नहीं सकता है. क्या 2 कार्बन का साइक्लिक चेन हो सकता है? इज इट पॉसिबल कि आप एक साइक्लिक चेन बनाएं एंड इट शुड बी ऑफ 2 कार्बन? इज इट पॉसिबल? आई थिंक योर आंसर विल बी नो.
क्योंकि साइक्लिक बनाने के लिए मिनिमम 3 पॉइंट से ही एक एरिया एनक्लोज्ड होता है। एक ज्योमेट्री में भी आपने पढ़ा है कि 3 पॉइंट्स एट 3 डिफरेंट पोजीशंस अगर है तो आप तीनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो एक एरिया एनक्लोज्ड होता है। तो यहाँ भी एक एरिया एनक्लोज्ड हो रहा है बाय 3 कार्बन इन द साइकिल। तो 3 कार्बन का चेन है। दिस इज द सिंपलेस्ट साइक्लिक हाइड्रोकार्बन और इसका नाम क्या होगा? क्योंकि ये 3 कार्बन का बना हुआ है तो इट इज प्रोपेन ओनली, बट इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन। उसी तरह से अगर 4 कार्बन हो तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोब्यूटेन। Are you getting my voice? Listening? Children, are you listening? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Cyclobutane. Similarly, you can go for one more. That is cyclopentane. This is your cyclopentane. Children, I'm stopping here because I will just give you the idea of different type of your nomenclature. I mean the representation. Representation means whether it is molecular formula or structural formula or condensed formula or just bond formula. तो कोई भी कंपाउंड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, पर थोड़ा सा मैं यहाँ पर ब्रेक कर रही हूँ। ऐसे आपने क्लास 10 में तो जरूर पढ़ा होगा, पर फिर भी मैं ब्रशिंग कर देती हूँ, शायद कोई बच्चा भूल रहा हो। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक कंपाउंड का नाम मैं आपको देती हूँ, C4H10, ठीक है? क्या है ये कंपाउंड? तो बता सकता है मुझे? C4H10 क्या नाम होगा इस कंपाउंड का? ब्यूटेन मैम। 4 कार्बन का ये है, अल्केन है, 4 कार्बन का अल्केन है, ब्यूटेन। मैम ब्यूटेन। वेरी गुड, ब्यूटेन है ये मैम। यस मैम आप वही ज्यादा लिखवाएंगे मैम, आप प्रायोरिटी टेबल मैम। क्या फिर से बोलो? प्रायोरिटी लेवल लिखवाने वाले जी मैम। हाँ हाँ लिखवा देंगे, पर प्रायोरिटी टेबल भी लिखवाएंगे और उसके एग्जांपल्स भी देंगे। आप घबराइए नहीं, मैं सब कुछ कंप्लीट करूंगी। प्रायोरिटी टेबल एनसीईआरटी बुक सबके पास है? एनसीईआरटी बुक सबके पास है? यस और नो? यस मैम। हाँ, प्रायोरिटी टेबल किसी और बुक से नहीं पढ़ना है, सिर्फ एनसीईआरटी बुक से पढ़ना है। आप एनसीईआरटी बुक्स के पेजेस टर्न करें, अगर अभी आपके पास है तो अभी आप खोलें, आप एनसीईआरटी के पेजेस टर्न करें, जहां फंक्शनल ग्रुप खत्म होता है वहीं पे आपको मिलेगा लेफ्ट साइड के पेज पे, पेज नंबर एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं है, बट आप अगर पेजेस खोलेंगे तो लेफ्ट साइड वाला पेज जो है वहां पे नीचे में लास्ट पैराग्राफ या 1 पैराग्राफ बिफोर दैट बोल्ड लेटर में प्रायोरिटी टेबल दिया हुआ है। मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगी प्रायोरिटी टेबल, ठीक है? तो एनसीईआरटी का ही प्रायोरिटी टेबल आपको याद रखना और किसी और का नहीं, और उसके एग्जांपल्स भी दे दूंगी। तो चलो मैं थोड़ा सा आपको बता रही थी अभी क्या कि कोई भी कंपाउंड को हम अलग अलग फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये सीबीएसई के क्वेश्चंस आते हैं और बच्चों को 0 मिल जाता है, क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि कौन सा फॉर्मूला मुझे यहाँ अप्लाई करना। एक बार मुझे याद है आज से 3 या 4 साल पहले बोर्ड का क्वेश्चन था, 10-12 बोर्ड का क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और वो क्वेश्चन ऑलमोस्ट 100% बच्चों को उसका आंसर पता होगा, आप लोगों को भी पता होगा। अगर मैं कहूँ कि पॉलीथीन का मोनोमर क्या है, पॉलीथीन किससे बना है? पॉलीथीन, पॉली मतलब मेनी, इथीन, पॉलीथीन। तो पॉलीथीन किससे बना हुआ है? इट्स अ मोनोमर ऑफ इथीन, ये सब लोग जानता है, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है, 12 का ये चैप्टर भी है पॉलीमर्स। तो पॉलीथीन इथीन का पॉलीमर है। द क्वेश्चन वाज, सीबीएसई का क्वेश्चन था, मैं इसलिए ये इस पॉइंट पर स्ट्रेस दे रही हूँ, मुझे अचानक याद आ गया कि भाई इसको स्ट्रेस देना जरूरी है। पॉलीथीन का क्वेश्चन था, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ मोनोमर ऑफ पॉलीथीन। क्वेश्चन फिर से सुनो ध्यान से। आपको पता है कि सीबीएसई अब आपको 15 मिनट रीडिंग टाइम देता है, क्लास 10 में भी और क्लास 12 में भी, डू यू नो और नॉट? क्लास 10 Yes, ma'am.
आपको पता है इसका मकसद क्या है? 10 मिनट्स 15 मिनट्स रीडिंग टाइम देने का पर्पस क्या है? एक्चुअली क्या होता था व्हेन वी वर स्टूडेंट, हम लोगों के समय में सीबीएसई 15 मिनट नहीं देता था। हम लोगों का 3 घंटे का ही पेपर होता था, हमें पेपर मिल जाता था और हम पेपर पढ़ना शुरू किए। तो हम लोग क्या करते थे कि पूरे पेपर को पढ़ते नहीं थे, एक एक क्वेश्चन पढ़ते जाते थे, आंसर लिखना, बस क्वेश्चन पेपर मिला, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर लिखा, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर लिखा, और फटाफट सब लोग बच्चे लिखना शुरू करते थे। इतनी हड़बड़ी बच्चों को होती थी कि बच्चे क्वेश्चन को ठीक से समझ भी नहीं पाते थे कि व्हाट आर द डिमांड्स, क्या क्या डिमांड है इस क्वेश्चन के, कितने इसके टेल क्वेश्चंस हैं। गिव एग्जांपल, एक्सप्लेन विद सूटेबल एग्जांपल। पता चलता है कि बच्चा एक्सप्लेन तो कर दिया, सूटेबल एग्जांपल छोड़ दिया, आधा नंबर चला गया वहां। तो ये सब प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करने के लिए कि बच्चा लिखने की हड़बड़ी में क्वेश्चन को समझा नहीं और बहुत अच्छे अच्छे बच्चे के मार्क्स चले जाते थे। इसलिए सीबीएसई ने ये डिसाइड किया कि नो, विदाउट प्रेशर, लिखने का प्रेशर बच्चे में नहीं होना चाहिए, एंड द चाइल्ड मस्ट गेट सफिशिएंट टाइम टू गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर। एटलीस्ट बच्चा क्वेश्चन पेपर शांति से पढ़े, उसको लिखने की हड़बड़ी नहीं हो। क्या होता था, पता चलेगा अगला बच्चा लिखने लगा, वो लिखने लगा, मैं तो पढ़ ही रहा हूँ। तो रीडिंग हैबिट डेवलप करने के लिए और अंडरस्टैंडिंग हैबिट डेवलप करने के लिए ये 15 मिनट्स मिलता है। तो ये 15 मिनट्स आपको इसलिए मिलता है कि ध्यान से आप क्वेश्चन पढ़ें और समझें कि व्हाट इज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, एग्जैक्टली व्हाट इज द डिमांड एंड गिव द आंसर। क्योंकि साइंस है ना, आपको कहानी तो लिखना नहीं। तो एक क्वेश्चन जो मैं अभी आपको बता रही थी कि बच्चे मैक्सिमम अच्छे बच्चे जिसको 69 मार्क्स आया, दे हैव लॉस्ट 1 मार्क ओवर हियर बिकॉज ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन था, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ मोनोमर ऑफ पॉलीथीन। तो व्हाट आर द आंसर्स वी आर गेटिंग? पॉलीथीन का मोनोमर होता है इथीन। ठीक है, कुछ आंसर बच्चे ने इथीन लिख दिया, वर्ड में इथीन लिख दिया। The answer is correct, but the demand of the question is not correct. Demand था write the structural formula. कुछ बच्चों ने लिखा C2H4, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बट अगेन बच्चे को पता है कि ये इथीन है, but this is not the demand of the question. Demand of the question is write the structural formula. कुछ बच्चे ने ऐसे लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, बट नो, इट इज नॉट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो अगर बच्चा ये लिख रहा है तो भी से 0 मिल रहा है, जबकि ये आंसर करेक्ट है। बच्चा ये लिख रहा है तो भी से 0 मिल रहा है, जबकि आंसर करेक्ट है। बच्चा ये लिख रहा है तो भी से 0 मिल रहा है, बिकॉज द आंसर इज करेक्ट। बट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन वाज नॉट टू राइट द मोनोमर, इट वाज टू राइट द structural formula of monomer of polythene. This is the structural formula. This is the structural formula. तो ये formulas आपको समझना है कि what are the different type of formulas. ये है name. This is the name of the compound. This is molecular formula. When you write C2H4, this is the molecular formula of ethene. When you write CH2 double bond CH2, this is the condensed formula of ethene. And when you write this way, it is the structural formula. तो क्या difference है molecular formula में, condensed formula में और structural formula में? क्या difference है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में सिर्फ एलिमेंट्स एंड द नंबर इज रिप्रेजेंटेड। एलिमेंट्स का रेशियो के साथ एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेड होता है, मतलब कार्बन 2 हाइड्रोजन 4, दैट्स ऑल। बट कंडेंस्ड फॉर्मूला में कार्बन टू कार्बन बॉन्ड दिखाया जाता है, कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं दिखाया जाता है, सिर्फ कार्बन से कार्बन का बॉन्ड दिखता है। एक्चुअली अगर आप इसको लिखें तो ये लिखना चाहिए ऐसे, मतलब कार्बन टू कार्बन बॉन्ड रिप्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में सारे बॉन्ड, कार्बन टू कार्बन एज वेल कार्बन टू हाइड्रोजन, ये सारे बॉन्ड्स दिखाए जाते हैं।
और एक और फॉर्मूला होता है, एक और फॉर्मूला में यहाँ देखिए इसके बाद उसमें सिर्फ ऐसे लिखा रहेगा दिस इज। अगर ये हाइड्रोकार्बन्स में आपको ऐसे में दे दूं, हाइड्रोकार्बन्स में ये दे दूं तो आप बड़े कंफ्यूज हो जाओगे। आप कहोगे ये क्या है, तो इक्वल टू का साइन दे दो, इट्स नॉट अ साइन ऑफ इक्वल टू। एग्जैक्टली ये सारे एलिमेंट्स यहाँ मिसिंग है। हाइड्रोकार्बन में बॉन्ड फॉर्मूला होता है, बॉन्ड फॉर्मूला सिर्फ कार्बन टू कार्बन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, बाकी किसी बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं करता, सिर्फ कार्बन टू कार्बन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं अगर यहाँ पे आपको ब्यूटेन दे दूं, ब्यूटेन, तो ब्यूटेन के एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। अगर मैं ये दे दूं कि ये कोई डायग्राम, कोई ड्राइंग नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, दिस इज योर ब्यूटेन। व्हाई? क्योंकि यहाँ पे एक CH3 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH3 है। मतलब यहाँ पे क्या दिखाया गया है, कोई एलिमेंट नहीं दिखाया गया है, कोई भी एलिमेंट नहीं दिखाया गया है, और सिर्फ आपको कार्बन टू कार्बन बॉन्ड दिखाया गया। एक इंटरसेप्टिंग लाइंस जितने भी हैं, जहां जहां पे डॉट्स में दिखा रही हूँ, ये एक बॉन्ड कार्बन टू कार्बन है, मतलब दो कार्बन यहाँ प्रेजेंट है। ये बॉन्ड कार्बन टू कार्बन है, मतलब यहाँ से यहाँ एक और कार्बन है। ये बॉन्ड कार्बन टू कार्बन है, मतलब यहाँ से यहाँ एक और बॉन्ड, मतलब एक और कार्बन। 1 2 3 4 कार्बन है, ऑल द बॉन्ड्स आर सिंगल। तो ये 4 कार्बन का सिंगल बॉन्ड एल्केन है, दैट इज ब्यूटेन। अगर मैं इसको हटा दूं तो ये 3 कार्बन है, दैट इज प्रोपेन। और मैं अगर इसको भी हटा दूं तो ये एक बॉन्ड है 2 कार्बन का, दैट इट इज इथेन। तो ये आपका कहलाता है बॉन्ड फॉर्मूला, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड फॉर्मूला। तो ये आपके बॉन्ड फॉर्मूला है। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? अगर ये मैं बॉन्ड फॉर्मूला लिख रही हूं, देन व्हाट? मैम ब्यूटीन, मैम ब्यूटीन, ब्यूटीन। क्या ये ब्यूट 1-ene लिखना है या ब्यूट 1-ene लिखने की जरूरत नहीं है? नो मैम, ब्यूट 1-ene लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या है? ये भी ब्यूटीन है। अभी तो दोनों लिखेंगे है? ब्यूट, क्या मैम ब्यूट 1-ene लिखेंगे। ब्यूट 2-ene है। ये ब्यूट 2-ene है तो वो ब्यूट 1-ene होगा, ठीक है? यस मैम। ब्यूट 1-ene एंड दिस इज ब्यूट 2-ene। अब आप बताइए व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड? डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, और 4 कार्बन है। मैम ब्यूट 2-ene 3-ine। वेरी गुड, ब्यूट 2-ene। इन का लास्ट वाला ई आप नहीं लिखेंगे, और 3-ine। व्हाई नॉट? सॉरी 1 नहीं होगा, इट विल बी 2 नहीं होगा, 1 होगा। 1 और 2 के बीच में है तो 1, 2 और 3 के बीच में है तो 2, और 3 और 4 के बीच में है तो 3, तो ये 1 होगा। ब्यूट 1-ene 3-ine। व्हाई नॉट ब्यूट 1? ये 1 में आइन क्यों नहीं, 3-ene 1-ine क्यों नहीं? क्योंकि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी होती है, याद रखिएगा, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी होती है। तो ये होगा 1-ene 3-ine। यहाँ पे e नहीं होगा बिकॉज अगेन बिकॉज ऑफ द वॉवल। y is not a vowel but sound is vowel sound, ine, that's why it will be ene 1-ene 3-ine। तो ये आपका स्ट्रक्चर्स है। अगर मैं ऐसा दे दूं, what will be the name of this compound? Me represent methyl group, Me represent methyl group. What will be the name of this compound? मैम 2-methyl butane। Very good, 2-methyl butane। 1 2 3 4, 2 पे एक मिथाइल ग्रुप है, 2-methyl butane। अगर मैं यहाँ पे ET लिख दूं, ET means मैम मैम
2-ethyl 2-ethyl 3-methyl butane. 2-ethyl 3-methyl butane. चलिए आपकी बात मैं मान लेती हूँ, बट चिल्ड्रन एक चीज मैं आपको समझा दूँ, ऐसा गलती कभी मत करना। इथाइल ग्रुप जब भी रहे तो इसको ओपन जरूर करना, नहीं तो आपको लॉन्गेस्ट चेन ढूंढने में प्रॉब्लम आ जाए। एक बार डायरेक्ट आप आंसर देने की कोशिश कभी मत करिए। अगर यहाँ पर एमी लिखा है तो यहाँ CH3 लिख दीजिए। आपको कोई कंफ्यूजन है तो थोड़ा C भी लगा दीजिए। अब आप लॉन्गेस्ट चेन चुनिए। क्या अब ये ब्यूटेन दिखाई दे रहा है या पेंटेन दिख रहा है? मैम 2,3-dimethyl pentane. वेरी गुड। अब ये आपका पेंटेन हो गया। कैन यू सी दिस इज पेंटेन। अब पेंटेन में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो यहाँ से आप लिखेंगे, क्योंकि यहाँ से लिखने पर सेकंड पे और थर्ड पे आ रहा है, यहाँ से लिखने पर थर्ड एंड फोर्थ पे आ रहा है, तो 2,3-dimethyl पेंटेन हो जाएगा नाम। जो अभी आपने कहा 2-ethyl 3-methyl ब्यूटेन वो गलत हो गया। ठीक है, तो हमेशा ऐसा होता है कि जब भी इथाइल ग्रुप प्रेजेंट हो तो बेटर है कि इथाइल ग्रुप को आप ओपन करिए। ओपन करने के बाद ही लॉन्गेस्ट चेन खोजिए, नहीं तो वो आपको धोखा दे देगा। ठीक है, तो ये आपका मेरे ख्याल से आपको पता चल गया कि हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मूलाज क्या है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड बॉन्ड फॉर्मूला। दिस इज योर बॉन्ड फॉर्मूला। ठीक है, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, बॉन्ड लाइन सिर्फ रहता है इसमें, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो अगर मैं आपको साइक्लिक में वापस आते हैं, ये कॉन्सेप्ट देने के बाद थोड़ा सा ये मिस कर गए थे हम, तो साइक्लिक में अब हम आते हैं एंड आई विल गिव यू द बॉन्ड फॉर्मूला। तो अगर मैं ये लिखती हूँ then this is not a triangle। अब आप मैथ्स का ट्रायंगल मत समझिएगा बिकॉज वी आर इन हाइड्रोकार्बन्स, तो इसका नाम क्या होगा? Cyclopropane. Very good, cyclopropane। and what is the name? मैम cyclopropene. cyclopropene। very good। ये क्या है? Cyclobutane. cyclobutane। Cyclobutene. Cyclobutane. But Cyclo 1,3 butene. 1,3 Butene. हाँ di dibutene. dibutene। नो, एक तो ये साइक्लो आप पहले लोकेंट नंबर असाइन करिए। जब भी आप लोकेंट नंबर असाइन करेंगे तो ये ध्यान रखना कि 1 के बाद 2 यहाँ नहीं होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ नहीं है। डबल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए आपको चेन लेना है, तो 1 के बाद 2 यहाँ ही होगा। 1 2 3 4, तो 1 और 2 के बीच यानी कि 1 पे डबल बॉन्ड है, 3 और 4 के बीच यानी कि 3 पे डबल बॉन्ड। ये तो क्लियर है? 1,3-dibutane. Butene. तो लगेगा ही साइक्लो, फिर ब्यूट। ब्यूट एक चीज ध्यान रखना, मैं यहाँ पर छोड़ रही हूँ, ब्यूट। उसके बाद 1 पे और 3 पे 2 डबल बॉन्ड है, तो डाई 3 लगा। तो ये डाई जो है वो अब वॉबल नहीं है, अगर वॉबल नहीं है तो ब्यूटा हो जाएगा। ये मैंने आपको बताया था ना, याद आया? भूल रहे हो? तो इसका नाम होगा साइक्लोब्यूटा 1,3-diene। ये छोटी छोटी बातें हैं बच्चे, बट आपको ये छोटी छोटी बातों से ही गलतियां हो जाएंगी। साइक्लोब्यूट आप नहीं लिख सकते हो, साइक्लोब्यूट 1,3-diene नहीं लिख सकते हो। अगर ये डाई नहीं होता, अगर ये डाई नहीं होता देन इट वाज ओके। साइक्लोब्यूट 1-ene तब ये करेक्ट था, साइक्लोब्यूट 1-ene तब ब्यूट होता। बट जैसे ही डाई लगा
जैसे ही इसमें डाई लगा ये ब्यूट बन जाएगा ब्यूटा। सो इट विल बी साइक्लोब्यूटा 1,3-डाइईन। अब किसी बच्चे ने मुझे कहा, अभी एक आवाज आई थी मुझे कि इट विल बी साइक्लो 1,3-ब्यूटाडाइन, साइक्लो 1,3-ब्यूटाडाइईन या ब्यूटाडाइईन। तो ये गलत हो जाएगा। अगर आपको क्या करना है कि बाद में जाकर के सफिक्स में जाकर के अगर ये ईन सफिक्स में है तो इसका लोकेंट नंबर भी सफिक्स में जाएगा। लोकेंट नंबर प्रीफिक्स में और ईन सफिक्स में, ऐसा ये होता है। तो ये आपको लिखना है पहले प्रीफिक्स नेम साइक्लो, रूट नेम ब्यूट, मगर चूंकि डाई लगने वाला है इसलिए ब्यूटा, 1 पे और 3 पे देयर इज डाई, इट विल बी ब्यूटा 1,3-डाई। क्लियर? ये बात क्लियर हो गई सबको? यस मैम। इसी तरह से आप पेंटेन, पेंटिंग, हेक्सेन, हेक्सीन कुछ भी आप कर सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, दिस वन। What is the name of this compound? मैम मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, या आप लिख सकते हो 1, 2, 3, तो ये हो जाएगा 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ये भी आप लिख सकते हो। सिमिलरली आप 1 नहीं भी लगा सकते क्योंकि कहीं भी होगा तो 1 ही होगा। तो मिथाइल साइक्लोप्रोपेन या 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन आप लिख सकते हो। अगर यहां भी हो तब 1,2-डाई-मिथाइल, 1,2-डाई-मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है? क्लियर? एनी डाउट? नाउ इसका नाम क्या होगा? C2H5। अगर C2H5 है तो प्लीज चिल्ड्रन इसको जरूर आप तोड़ेंगे पहले। CH2 CH3। अब बताइए इसका नाम क्या होगा? मैम साइक्लोइथेन। इथेन कहां से? साइक्लो इथेन तो हो ही नहीं सकता। इथेन का साइक्लिक कंपाउंड हो ही नहीं सकता। साइक्लिक तो 3 कार्बन का है, प्रोपेन। 1-ethyl cyclopropane. वेरी गुड, 1-ethyl cyclopropane। अब बताइए देखो, डबल बॉन्ड आपको वो चेन लेना है जिसमें डबल बॉन्ड आ जाए। अब फंक्शनल ग्रुप वाली बात आ गई तो आप साइक्लिक को आप प्रीफिक्स में ले जाएंगे, आपका ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा, ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगा क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ जाना है। एंड दिस इज योर इथीन, दिस इज योर इथीन। बट इथीन के कार्बन नंबर 1 पे देयर इज साइक्लोप्रोपाइल, so this is your 1 cyclopropyl, ये प्रीफिक्स नेम है। 1 cyclopropyl ethene, 1 cyclopropyl ethene। क्लियर? यस, अब डबल बॉन्ड नहीं है, आप बताइए अब क्या नाम होगा? मैं वो लास्ट वाला एग्जांपल रिपीट कीजिएगा ना। ओके, मैं एक बार आपको बता रही हूँ रूल्स। जैसे साइक्लिक कंपाउंड सारा सिंगल बॉन्ड एल्केन है और इसके साथ एक कार्बन सब्स्टिट्यूटेड है, तो मिथाइल प्रीफिक्स में आएगा, ये प्रीफिक्स में आएगा, एंड दिस विल बी द रूट नेम साइक्लोप्रोपेन।
अगर दो कार्बन सब्स्टिट्यूट में है, दो कार्बन का चेन दो कार्बन का चेन है और साइक्लिक 3 कार्बन का चेन है, तो लॉन्गेस्ट चेन आपको लेना है। तो दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, 3 कार्बन का चेन इज लॉन्गेस्ट, तो ये रूट नेम में आएगा साइक्लोप्रोपेन एंड दिस इज विल बी द सब्स्टिट्यूट 1-ethyl, ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। बट ऐसा सिचुएशन जब आपको आता है, मैं भी बता रही हूँ, ऐसा सिचुएशन आता है कि साइक्लिक में भी 3 कार्बन है और सब्स्टिट्यूट में भी 3 कार्बन है, मतलब ओपन चेन भी 3 कार्बन का है और साइक्लिक भी 3 कार्बन का है। इसमें भी सारे सिंगल बॉन्ड है, इसमें भी सारे सिंगल बॉन्ड है, इसमें भी कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसमें भी कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। उस कंडीशन में कौन प्रीफिक्स होगा और कौन सफिक्स होगा? अभी तक तो मैंने कहा था जो लॉन्गेस्ट होगा वो रूट नेम होगा, जो लॉन्गेस्ट चेन कार्बन का होगा वो रूट नेम होगा, बट यहाँ पर तो दोनों ही सेम कार्बन का है, तो किसको रूट नेम में ले और किसको सफिक्स में ले? जब दोनों में ही किसी में दोनों एल्केन है और किसी में भी कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ऐसे कंडीशन में साइक्लिक को ही रूट नेम में दिया जाता है। यानी कि ये आपका क्या हो गया? प्रोपाइल, दिस इज योर प्रोपाइल, तो ये हो गया 1 प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, ये साइक्लोप्रोपेन हो गया। बट अगर ये आपका 4 कार्बन का चेन हो जाए और साइक्लिक 3 कार्बन का, तो ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया। अब आप साइक्लोप्रोपेन नहीं लिख सकते, साइक्लोप्रोपेन विल बी कमिंग इन द प्रीफिक्स, तो इसको आप लोकेट नंबर असाइन करें एंड दिस विल बी, आर यू गेटिंग द वॉइस? आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम आ रही है। तो हो जाएगा 1 साइक्लोप्रोपाइल, ये प्रीफिक्स में आ जाएगा क्योंकि इसका नंबर ऑफ कार्बन कम है, 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन हो जाएगा, 1 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। नाउ जो मैंने एक क्वेश्चन दिया था जिसमें कि बच्चे को डाउट था, अगर मान लो ये जो चेन है ये छोटा ही क्यों ना हो, बट इसमें एक फंक्शनल ग्रुप आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया या कोई फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो ये साइक्लिक चाहे कितने भी बड़े चेन का है वो आपको नहीं लेना है। मैंने कहा था ना कि फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी होती है, आपको वो चेन सिलेक्ट करना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप आ जाए, इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है, तो आपको इसी को लेना है। ये बड़ा होते हुए 3 कार्बन का होते हुए भी आपको इसको नेग्लेक्ट करना है, ये लॉन्गेस्ट चेन में आ जाएगा। तो ये लॉन्गेस्ट चेन में आ जाएगा तो इसके लोकेट नंबर असाइन करो, कार्बन नंबर 1 पे ये सब्स्टिट्यूट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 साइक्लोप्रोपाइल, ये सब्स्टिट्यूट बन जाएगा, और इथेन नहीं है, ये इथीन, ये इथीन। तो इस इज 1 साइक्लोप्रोपाइल इथीन। या फिर मैं दूसरा एग्जांपल आपको दे रही हूँ, जैसे ये साइक्लिक है, ठीक है, और इसमें डबल बॉन्ड है और ये आपका चाहे कितना भी लंबा चेन हो जाए, ये चेन और लंबा हो जाए, तो फिर आप इसको नहीं लेंगे, ये मेन हो जाएगा। अब ये साइक्लोपेन प्रोपीन हो जाएगा, साइक्लोप्रोपीन, तो ये क्या हो गया? ब्यूटाइल, ये ब्यूटाइल सब्स्टिट्यूट हो जाएगा।